Okay, today we are going to start our Fab March 2025 paper 4 variant 2. This is for IGCSE, but this is important for both O level and IGCSE both because 2025 की सीरीज का this is the first paper. अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि O level and IGCSE the syllabus content is exactly same, so this is important for both O level and IGCSE. ठीक है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके पास ऐसे होते हैं जो 2025 की सीरीज में अभी जब स्टार्ट होता है पेपर, जो सीरीज स्टार्ट होती है उसमें जो क्वेश्चंस वो बताते हैं, जो कॉन्सेप्ट को ट्राई करते हैं, तो यूजुअली ये देखा गया है कि ये पूरी सीरीज में फिर उसी तरह के कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं, मई जून में भी, अक्टूबर नवंबर में भी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि जो इस पेपर में है बस आपने वही पढ़ना है और आगे बाकी की चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन बट यू कैन कंसिडर इट एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पेपर्स फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। आईजीसीएसई के पेपर्स 1 आवर 15 मिनट्स का होता है, लेकिन मार्क्स इनके भी 80 होते हैं। तो हम इसमें जितनी भी चीजें हैं वो करेंगे जैसे हम लोग बाकी ईयरली पेपर्स कर रहे हैं, इसी तरह से इसको भी देखेंगे। अच्छा, the question number 1 says, using the numbers only, state the percentage of oxygen in clean dry air. So you have to remember the percentage composition of nitrogen in air and oxygen in air. So the percentage for nitrogen is 78% that you need to remember, and for oxygen it is 21%. Although there is some carbon dioxide present in the air, the percentage is 0.04%, but you're not supposed to remember this. So for oxygen, this is 21%. Straightforward answer, you will get 1 mark. Typical operating temperature in degrees Celsius used in Haber process. For both Haber process and contact process, the temperature that they use is 450 degrees Celsius. You also need to remember other conditions of Haber process like the catalyst. Catalyst that they use is iron. And the third thing is the pressure. Pressure is 200 atmosphere for Haber process. And for contact process, your pressure they use is 2 atmosphere. Usually you mess up with the pressure values because the pressure and because the temperature in Haber process and the contact process is exactly the same, that is 450 degrees Celsius, but the catalyst for contact process is vanadium 5 oxide. So for this answer is your temperature is 450 degrees Celsius for Haber process. Make sure to write the units of temperature as well. Okay. Acha. Now the part C says the number of atoms in diatomic molecules. So it's a very straightforward question. Diatomic means two atoms that have been joined together to form a molecule. So the number of atoms present in a diatomic molecule must be 2. Then the part D says maximum number of electrons in the second shell of an atom. So if you make electronic configuration of any atom, the maximum number of electron a second shell can hold is 8 electrons. Again, straightforward, right? The number of hydrogen atoms in an alkane with 7 carbon atoms. So if you make a formula of alkane with 7 carbon atoms, you have to remember the general formula of alkane, which is CnH2n plus 2. If you put N as 7 in this formula, the number of hydrogen atoms would be equals to 2 into 7 plus 2. That would be 7 2s are 14 plus 2 is 16. The part F says number of particles in 1 mole in standard form. So this is your Avogadro constant that you need to remember. The exact value for Avogadro constant that is given in your syllabus is 6.02 exponent 23 atoms if you're dealing with atoms, but in case if you're dealing with molecules, then 1 mole of any molecule also have 6.02 exponent 23 molecules. But in case if you are dealing with ions, then 1 mole of ions would have 6.02 exponent 23 ions. Yes, Avogadro constant would definitely come in your O level and IGCSE both. The reason being because it was added in 2023 in your syllabus. So we are expecting this value or any question related to this value, right? Now the question number 2 says the question is about ionic compound. State what is meant by the term ionic bond. So you have to write the definition of ionic bond. It is the electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. Electrostatic force of attraction. In case if you just forget the word electrostatic, you can just write force of attraction between oppositely charged ions. Electrostatic force of attraction between oppositely charged ions, or if you want to write electrostatic force of attraction between cations and anions, that would be correct.
So this is the electrostatic force of attraction between oppositely charged ions, right? Potassium sulfide is an ionic compound. Yes, Preeti. Of course, अभी आपका थ्योरी का ही पेपर होगा. Then ATP will conduct later. Potassium sulfide is an ionic compound. Complete the dot and cross diagram in figure 2.1 of the ions in the potassium sulfide. Show the charges of the ions. So you know the formula of potassium sulfide. If you try to make the electronic configuration of potassium atom, potassium has 19 protons. It means potassium atom has 19 electrons. So the electronic configuration would be 2, 8, 8, 1. Now, as it is a group 1 metal, it will lose one electron to achieve stability. It has only one electron in its outermost shell. Then after losing electron, its second last shell would become its valence shell. And it is left with 3 shells. So you have to complete this diagram. It means you have to draw one more shell of potassium. And in that shell, you have to show 8 electrons. Now they have already drawn electrons of potassium with a dot. So make sure you draw the electrons of potassium with a dot. Make 8 electrons in the same manner that they have drawn for the other shells. 2 electrons together like this. And after losing an electron, it will get a charge of +1. So you have to make a charge of +1 here as well. Whenever we have to write +1 or -1, we can just represent a positive sign or negative sign. We are not supposed to write the number with it. But in case if you write the number, it's okay. It won't make it incorrect. आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है. Now, for sulfur atom, we know that the number of protons in the sulfur atom that you can see from the periodic table is 16. So its electronic configuration is 2, 8, 6. Its first shell has 2 electrons, second shell has 8 electrons. The valence shell of sulfur has 6 electrons. So there are 3 shells in the sulfur atom. When sulfur forms an ion, it gains electron, because you have to remember that all group 5 elements, they gain 3 electrons and they get a charge of -3. All group 6 elements, they gain 2 electrons and they get a charge of -2. All group 7 elements, they gain 1 electron and they get a charge of -1. So sulfur is going to gain 2 electrons. So you have to draw one more shell of sulfur where it has its own 6 electrons that were present initially. Now it will be gaining 2 electrons from the potassium atom. Achha, potassium ke electrons we have drawn with a dot. So you have to make sure when the sulfur is going to receive electrons from the potassium, that should be drawn with a dot, not with a cross. Right? You can make 2 electrons like this. And the sulfur atom will, after gaining 2 electrons, it will get a charge of 2 negative. अच्छा उस्मान, सिर्फ नेगेटिव नहीं लिख सकते because this is 2 negative ना, it is gaining 2 electrons. If you just write negative charge, it would be read as -1. ठीक है, अगर आप सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव लिखते हैं, that is for +1 or -1. But if it is any other value other than 1, you have to state the number as well. ठीक है, आप 2 लिखेंगे फिर नेगेटिव लिखेंगे. अगर आप सिर्फ नेगेटिव लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा. नहीं, सल्फर में वी कैन नॉट ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स विद क्रॉस, बिकॉज सल्फर के अपने इलेक्ट्रॉन्स दे हैव ड्रॉन विद अ क्रॉस. सो इफ इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पोटेशियम, तो दैट हैज टू बी शोन विद अ डॉट, क्योंकि पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने डॉट से शो किए हुए ना. तो वी हैव टू शो दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम द पोटेशियम एटम. ठीक है, ये जो 2 न्यू इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द पोटेशियम एटम, जिसके उन्होंने डॉट से शो किए हुए. तो आप इसके अगर क्रॉस से शो करेंगे तो ऑब्वियसली वो गलत हो जाएगा. ठीक है, one way of making a dot and cross diagram is के you if we can see that we have 2 potassium ions joining with 1 sulfide ion. So if they had just drawn 1 potassium ion, तो उसके बाहर आप 2 लिख देते इस तरह से. लेकिन उन्होंने दोनों पोटेशियम आयन अलग अलग करके बनाए हुए. इट मींस यू हैव टू कंप्लीट द अदर diagram of the potassium ion as well. That diagram would look exactly the same as the diagram on the left hand side. You have to make how many more electrons? 8 more electron in its valence shell, because ये अब सेकेंड लास्ट शेल जो था पोटेशियम एटम का, वो वैलेंस शेल बन गया है, क्योंकि इसके बाद एक और शेल था जिसमें देयर वाज 1 इलेक्ट्रॉन, और वो लूज कर चुका है पोटेशियम आयन बनाने के लिए, तो वो शेल आपको नहीं दिखाना.
ठीक है, एंड द चार्ज ओवर पोटेशियम वुड बी +1, यू कैन जस्ट राइट पॉजिटिव। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज तो आप 1 भी लिख दें इसके साथ, बट इन केस अगर आप +1 और -1 के साथ 1 नहीं लिखते तो वो भी सही होता है। वैसे तरीका तो यही होता है कि हम जब +1 और -1 होता है तो सिर्फ साइन लिख के छोड़ दें, आप वैल्यू ना लिखें। बट इन केस इफ इट इज एनी अदर वैल्यू एक्सेप्ट 1 तो फिर आपको इसके साथ नंबर लिखना होता है, वरना गलत हो जाएगा। चलिए भाई आगे। ओके, Part C says ionic compounds form giant ionic lattices. Figure 2.2 shows part of the giant ionic lattice structure of sodium chloride. Complete the diagram in figure 2.2 to show the ions present. Use positive for sodium ions and negative for chloride ion. One chloride ion has been completed for you. अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये बड़े टाइम बाद इस तरह का क्वेश्चन देखा है। यू नो दैट आयनिक कंपाउंड्स, व्हेन यू रीड द कंप्लीट डिटेल ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, so in ionic compounds we have a giant ionic lattice where oppositely charged ions are alternatively arranged, मतलब एक पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। रिमेंबर वी यूज्ड टू स्टडी दैट अ पॉजिटिव चार्ज हैज अ नेगेटिव चार्ज इन फ्रंट, मतलब पॉजिटिव के फ्रंट पे नेगेटिव, बैक पे नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव, नीचे नेगेटिव, राइट पे नेगेटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव, ये वही वाला काम है। ठीक है, so you have to make positive charges, but make sure negative charge should always face a positive charge and a positive charge should always face a negative charge। तो पॉजिटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव है तो उसके आगे पॉजिटिव, नेगेटिव के पीछे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। ये बहुत टाइम बाद ये वाला क्वेश्चन ना इस तरह का आयनिक लैटिस वाला आया है। प्रीवियसली बिफोर लाइक 7 to 8 years ago they used to give such a question, but it's been long I haven't seen this question. State the name given to any positive ion. Positive ions are known as cations and negative ions are known as anions. Part D says ionic compounds can be decomposed by the passage of an electric current using inert electrodes. State the name of this process. So the passage of electric current through any electrolyte, the process is known as electrolysis. Write the ionic equation, ionic half equation for the reaction which takes place at the anode when molten potassium bromide is decomposed by the passage of an electric current. अच्छा जी, हाफ इक्वेशन लिखनी है एट एनोड। एनोड इज योर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। एनोड पे कौन से आयन जाते हैं? नेगेटिव आयन जाते हैं। अब पोटेशियम ब्रोमाइड में वी हैव टू टाइप्स ऑफ आयन, इट इज अ मोल्टेन पोटेशियम ब्रोमाइड, तो इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन तो होगा नहीं, तो इट हैज ओनली टू आयंस, पॉजिटिव आयन एंड Br नेगेटिव आयन, right? Now, if you see bromide ion is a negatively charged ion. It will go towards the positively charged electrode, that is anode. And anode is the electrode where oxidation takes place. That is, loss of electron takes place at the anode. So, bromide ion, Br negative ion will lose electrons to form bromine molecules. Bromine atom, it does not stays alone. It stays in a diatomic form. So, we always write Br2. In order to balance this equation, we have to put 2 moles of bromide ion on the left hand side of the equation. Each bromide ion is losing 2 electrons. So 2 bromide ion together, they will lose 2 moles of electrons. So this is the complete equation for the oxidation of bromide ion at the anode. ठीक है, ये इक्वेशंस आपने बहुत बनाई हुई हैं। यू शुड नो हाउ टू मेक द इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन एज वेल. Name the products and state the observations at the negative and the positive electrode when dilute aqueous potassium bromide is decomposed by the passage of electric current. Now your electrolyte is dilute electrolyte, and in case of dilute electrolyte we have established that hydroxide ions are the ones that gets oxidized. ठीक है, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होती है whenever you have chloride ion or hydroxide ion together in the electrolyte, and if dilute is written with the electrolyte, make sure you oxidize the hydroxide ion. But if you have bromide ion and hydroxide ion, again, if dilute is written, it means hydroxide ion will get oxidized. And if you have iodide ion and hydroxide ion, in that case, actually, if you actually do the electrolysis, iodide ion may get oxidized, but as per our syllabus is concerned, if it says dilute, तो आप hydroxide ion को oxidize कर देंगे. Right now, this is aqueous potassium bromide, and potassium has a charge of +1, bromide has a charge of -1. Now, if you have an aqueous electrolyte, it has a charge of H positive and OH negative. ठीक है, frequently asked concept में अगर आप वो देखें ना,
तो देखें, आप जब एयरली पेपर्स करते हैं तो आपके पास एक सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्शन बनती जाती है। ठीक है। अब हम लोग, ऐसा नहीं होता कि जो है वो कोई गैस कर रहे हैं या हमें वो ख्वाब आ रहे हैं कि क्या क्या आएगा। हम लोग जब 10 साल के पेपर्स देखते हैं, आपस में सॉल्व करवा रहे होते हैं, तो इफ यू सी कि ब्रोमाइड आयन की जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो काफी इंपॉर्टेंट हुई थी। ये हमारे फ्रिक्वेंटली टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस ब्रोमाइड सोल्यूशन। ठीक है, 2025 की सीरीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब ये मेजून 2025 में आया हुआ है। ठीक है, अब आईजी में आ गया है, तो ओ में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकता है। अब आईजी में आ गया तो दोबारा आईजी में नहीं आ सकता। ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा इस तरह से, अगर आप आईजी वाले हैं तो आप क्लोराइड आयन के लिए देख लें भाई, उसको रिवाइज कर लें। आप कॉपर टू सल्फेट के लिए देख लें, क्योंकि मोस्टली पे कॉपर टू सल्फेट के लिए पूछ रहा होता है। तो इस तरह से आप जो है वो चीज़ों को ना एनालाइज कर सकते हैं। हम भी यही देख के एनालाइज कर रहे होते हैं। जब आप बहुत सारे पेपर्स एक साथ आपके सामने आ जाते हैं तो आपको कुछ एक फिक्स पैटर्न दिखना शुरू हो जाते हैं। बट अगेन मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ के आपको सब जाना है। ये लास्ट मिनट जो रिवीजन है ना, इन चीज़ों से आप करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब कंसंट्रेटेड है तो बेटा ब्रोमाइड आयन ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, अगर डाइल्यूट है तो फिर आपका जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होगा। कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हुआ है कि उन्होंने एक्वस ब्रोमाइड आयन सोल्यूशन में ना सिर्फ एक्वस लिखा हुआ है, कंसंट्रेटेड नहीं लिखा हुआ। अगर जस्ट इन केस एक्वस इज रिटन, देन ऑलवेज ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड आयन। यस हसन, दैट्स व्हाट आई मीन। अच्छा भाई, product at the negative electrode. So negative electrode will get, negative electrode is the cathode. It will get positively charged ion. Positively charged ions are two positively charged ion in this electrolyte, potassium ion and H positive ion. So H positive ion will get reduced because it is lower in the reactivity series. As for the cations, we just have to see the reactivity series. Doesn't matter if your electrolyte is dilute or concentrated, you have to follow the electrochemical series. So H positive ion will get reduced to form hydrogen gas. You all know the equation of reduction of H positive ion. ठीक है, this is, they are asking about the product at the negative electrode. ठीक है, we are not supposed to write the equation over here. Equation नहीं मांगा हुआ है, product मांगा हुआ है। तो आप product में क्या लिखेंगे? You just write hydrogen gas. The next part says observation at the negative electrode. Your negative electrode is your cathode. Again, oh sorry, this is the observations at the negative electrode. पहले प्रोडक्ट था, अब ऑब्जर्वेशन है। तो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, सो यू हैव टू राइट बबल्स ऑफ कलरलेस गैस। Product at the positive electrode is your anode. Which ions will move towards the positively charged electrode? Bromide ion and hydroxide ion. As the electrolyte is dilute, so hydroxide ion will get oxidized. And what is the equation for the oxidation of hydroxide ion? Hydroxide ions, when they oxidizes, they form 2 moles of water, 1 mole of oxygen and 4 mole of electrons. So the product at the positive electrode is oxygen gas. And why they are mentioning two types of product? Because we get oxygen gas as well as water, H2O. And observation would be bubbles of colorless gas of oxygen. Water की तो observation दिखेगी नहीं, क्योंकि already aqueous electrolyte है, तो उसमें already water होगा। तो जो oxygen gas एनोड पे produce हो रही होगी, it will be seen as bubbles of colorless gas, right? नहीं, they haven't said anything about naming the product. If you can write the formula, that would be okay too. आप फॉर्मूला लिख देंगे तो इसमें आपके मार्क्स पेनलाइज नहीं होंगे। इसने क्योंकि, अच्छा नहीं 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 नहीं, सॉरी, इफ यू सी दी फर्स्ट लेटर ऑफ दिस क्वेश्चन, नेम द प्रोडक्ट्स। नेम नेम, नाम लिखना है, नाम लिखना है भाई, नाम लिखना है। ठीक है, ग्लैड यू आस्क्ड, नाम लिखना है, ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार देखा करो जब फॉर्मूला लिखना है या नेम लिखना है। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में बेटा फर्क ये है, इफ दे गिव यू एनी इलेक्ट्रोलाइट एंड इफ डाइल्यूट इज रिटन विद द इलेक्ट्रोलाइट, always oxidize hydroxide ion in the electrolyte to form oxygen gas. But in case if they have given you the electrolysis of aqueous dilute, let's say potassium iodide, and if they have said themselves कि iodide ion जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं हो रहा, अगर वो खुद से कह दे तो मान लेना उसकी बात।
ठीक है, बिकॉज आयोडाइडाइन जो है वो यूजुअली हो जाते हैं, बट आपने जबरदस्ती नहीं करना है। अगर आपको वैसे वो देगा नहीं, इनकेस अगर दे देता है, अगर वो देगा तो वो कंसंट्रेटेड देगा। ठीक है, तो उसमें फिर अगर वो खुद से कुछ प्रोडक्ट बता देता है तो वो आपने माननी है बात। क्योंकि एक बार ना पुराने ईयर्स में एटीपी का क्वेश्चन आया हुआ था ओ लेवल में, उन्होंने लिखा हुआ था एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड, कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट नहीं लिखा हुआ था उसके साथ। तो उसमें ना ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके प्रोडक्ट बताया हुआ था, प्रोडक्ट्स बताए हुए थे कि उसमें ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं नोट पे। तो वहां से एक बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी कि क्या ब्रोमाइड आयन ऑक्सीडाइज होगा एक्वस में या एक्वस कंसेंट्रेटेड में या एक्वस डाइल्यूट में, अगर सिर्फ एक्वस लिख देंगे तो क्या होगा। उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ रिपीट नहीं किया। व्हेनेवर दे मेंशन द इलेक्ट्रोलाइट तो उसके साथ वो डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड हमेशा लिखते हैं। ठीक है हसन, समझ आई बात? आगे बढ़े। नाउ हैलोजेंस आर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट टेबल। अच्छा, हैलोजेंस जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारी 2025 की सीरीज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी ऑब्जर्वेशन स्टेट एंड अपीयरेंस ऑफ हैलोजेंस ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस इंपॉर्टेंट है, और आपकी जो आयनिक इक्वेशन ऑफ हैलोजेंस है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हैलोजेंस आर ग्रुप 7 एलिमेंट्स, क्लोरीन इज अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। State the group number of the halogen. So this is group 7. Either you can write it in Roman, or if you just want to write it like this, that would be acceptable too. State how many halogens there are in the group. ठीक है, नाउ अगर आपको याद नहीं है तो आप परेशान ना हो कि कितने हैलोजेंस होते हैं, जस्ट गो टू द प्रोडक्ट टेबल, काउंट द नंबर ऑफ हैलोजेंस दैट आर प्रेजेंट इन ग्रुप 7। ठीक है, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर आप फ्लोरीन से आयोडीन तक काउंट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पूरे ग्रुप का पूछ रहा है। यू जस्ट हैव टू गो टू द प्रोडक्ट टेबल एंड काउंट द नंबर ऑफ हैलोजेंस प्रेजेंट। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। So there are 6 halogens that are present in the group 7. Suggest the identity of the halogen which has the highest density. अब now for halogens, as you move down the group तो उनकी कुछ properties में change आता है। देखें, down the group, DTG is the short form for down the group, मैं ये लिख रहा हूँ आपको बता रहा हूँ इसका मतलब ये। डाउन द ग्रुप डेंसिटी ऑफ हैलोजेंस इंक्रीज होती है। व्हाई डेंसिटी ऑफ हैलोजेंस इंक्रीजेस? बिकॉज मास ऑफ हैलोजेंस इंक्रीजेस, हमारा एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है ना। इनफैक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, एंड एज फॉर देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस down the group, because halogens are non-metals and non-metals react by gaining electrons, so their electron gaining ability decreases, because as their size increases their nucleus and the valence shell distance increases। तो जितना वैलेंस शेल दूर होगा न्यूक्लियस से उतना गेन करना मुश्किल होगा, राइट? हाँ, मेटल्स में अपोजिट होता है, मेटल्स के ग्रुप में अपोजिट होता है। विस्कोसिटी एंड फ्लेमेबिलिटी, देखो फ्लेमेबिलिटी की बात तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ करते हैं ना, तो आप होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज को मर्ज कर रहे हैं इसके साथ, ना करें। ठीक है, विस्कोसिटी हाँ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इनकी जो स्टेट है वो गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। तो यस वी कैन टॉक अबाउट विस्कोसिटी, देयर विस्कोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, हिंड्रेंस टू द फ्लो इंक्रीजेस क्योंकि वो गैस से सॉलिड में आ रहा है, बट फ्लेमेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, रिएक्टिविटी की बात करेंगे, ये फ्लेमेबल नहीं है हैलोजेंस। तो हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी? द हैलोजन दैट इज प्रेजेंट इन द लास्ट इन ग्रुप 7, दैट इज टेनिसीन। आप इसका सिर्फ सिंबल लिख दें अगर आपको नाम नहीं लिखना, या अगर आप जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि नाम पूछा है या सिंबल लिखना है, आइडेंटिटी पूछिए ना, ये तो नहीं बोला ना कि नेम द एलिमेंट। तो यू कैन जस्ट राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। The highest density would be of the halogen that is bottom most in the group of groups periodic table. The most active halogen is the halogen that is present at the top of the group 7, which is fluorine. आप सिंबल भी लिख सकते हैं इसका, मोस्ट एक्टिव इज फ्लोरीन। नहीं, इसने सिर्फ आइडेंटिटी पूछी है ना हेलोजन की। आई नो दे एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, बट वो आइडेंटिटी पूछ रहा है, नेम ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, तो मैंने सिर्फ इसका सिंबल लिख दिया। आप नाम भी लिख सकते हैं, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ उसके मॉलिक्यूल का। नाम ही क्या मिस हो गया बेटा? नो, प्रोडिक्ट टेबल इज गिवन इन योर थ्योरी पेपर। Oh, this is same for both O level and IGCSE. Product table is given with MCQ paper and theory paper, but it is not given with the ATP paper. In case you need any information from the product table in ATP, it will be given with the question. I'm not saying you have to remember the product table for your ATP paper, right?
हाँ, बट जो टेस्ट फॉर आइंस का जो टेबल है ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस के जो नोट्स हैं, टेस्ट फॉर कैटाइंस एनाइंस फ्लेम कलर्स एंड टेस्ट फॉर गैसेस, दैट वुड बी ओनली गिवन विद द एटीपी पेपर। ठीक है, वो एमसीक्यू और थ्योरी पेपर के साथ वो नहीं मिलेगा, उसके लिए वो आपको याद करना है। दिस इज नॉट योर एटीपी पेपर, ये थ्योरी पेपर है आईजी का। थ्योरी है भाई, एटीपी नहीं है ये। से द नेम ऑफ द नेगेटिव आइंस फॉर्म बाय हैलोजेंस। तो हैलोजन जब नेगेटिव आइन बनाते हैं तो उनका जो जनरल नेम है वो पूछ रहा है, तो वो है हेलाइड आइंस। जैसे क्लोरीन बनाएगा क्लोराइड, ब्रोमीन बनाएगा ब्रोमाइड, आयोडीन बनाएगा आयोडाइड। State how many occupied electron shells there are in a bromine atom. Yes, remember when we were discussing the frequently asked topic, I told you that they have this question asked for silver atom कि सिल्वर के नंबर ऑफ शेल्स कितने होते हैं। अब देखें भाई, सिल्वर जो है उसका यू कैन नॉट मेक एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रीजन बीइंग बिकॉज in your syllabus you can just make the electronic configuration of the first 20 elements of the periodic table, that is up till calcium, because beyond calcium the rule for making electronic configuration does not stays valid. Only for first 20 elements you know how to make the electronic configuration. But in case if we ask how many atoms are present in the how many number of shells are present in the silver atom, तो students क्या गलती कर रहे हैं, they are making the electronic configuration of silver 2,8,8 जो कि वो गलत बनती है। So you just have to see the period number of the silver atom now. 1, 2, 3, 4, 5. It is in the fifth period. It means it must have 5 shells. भाई period number क्या बताता है आपको? Number of valence shell, number of shells in the atom. और ग्रुप नंबर आपको क्या बताता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ब्रोमीन कौन से पीरियड से आ रहा है? हियर इट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन आ रहा है आपके फोर्थ पीरियड से। भाई फर्स्ट पीरियड जो है ना आपका हाइड्रोजन हीलियम वाला है। अच्छा बच्चे, पीरियड भी गलत काउंट कर लेते हैं। दे डू नॉट काउंट दिस पीरियड हाइड्रोजन और हीलियम। वो दे स्टार्ट काउंटिंग द पीरियड नंबर फ्रॉम दिस नियॉन वाला पीरियड। ठीक है, ये वाला लिथियम वाले पीरियड को फर्स्ट समझते हैं। फर्स्ट पीरियड जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम वाला है, 3, और इट इज कमिंग इन द फोर्थ पीरियड। सो ब्रोमीन एटम मस्ट हैव 4 नंबर ऑफ shells. These are 4 shells because it is in period 4. Name the noble gas which has the same electronic configuration as the bromide ion. Oh yes, this is a good question. Now if you see bromide ion, see up electronic configuration, you cannot make the electronic configuration of a bromine atom, neither you can make the electronic configuration of a bromide ion. If any two particles, let it be atom or ion or anything else, if any two particles have same electronic configuration, it means they must have same number of electrons, right? अगर दो चीजों की सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अब ब्रोमीन एटम है 35 इलेक्ट्रॉन, अब ब्रोमाइड आयन विल हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 36 इलेक्ट्रॉन। So you just have to choose the element from the periodic table that has 36 number of electron, and you can just see this atom adjacent to bromine which is krypton, right? सेम पीरियड वाली बात नहीं करेंगे हम, बिकॉज सेम देखो, अगर आप सेम पीरियड वाली बात कर रहे हैं ना, तो उसका इशू ये है कि अगर मैं बात करता हूं लेट से सोडियम की, तो सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट अ सोडियम आइन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? नाउ इफ वी कंसिडर नियॉन एटम, तो नियॉन एटम डज नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। मैं पूछूं नियॉन एटम में और सोडियम आइन में क्या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ऑफ कोर्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज सोडियम आइन आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट इज लेफ्ट विद 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड नियॉन एटम हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो डू आर दे इन द सेम पीरियड? nahi na, but they have same number of electrons. If they have same number of electrons, if you are going to make the electronic configuration of sodium ion, that would be exactly same as that of the electronic configuration of neon atom. सही है? So you have to compare the number of electron. If you are going to compare the electronic configuration between an atom and an ion, their number of electrons must be exactly same. ठीक है, तो ब्रोमीन एटम के पास 35 इलेक्ट्रॉन है, बट ही इज कंपेयरिंग ब्रोमाइड आयन, तो ब्रोमाइड आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ब्रोमाइड आयन इज Br नेगेटिव आयन, इट मींस इट मस्ट हैव गेन वन इलेक्ट्रॉन, so the number of electron are 36. How many, which atom or which element of which atom, sorry, atom of which element have 36 electron? That is krypton. ठीक है, आयशा बेटा
ये बात मैं बाद में बता दूंगा ना, मैं पेपर करा रहा हूँ। Which paper is most difficult? I personally feel 2022 papers are the better one. ठीक है, ये वैसे मैं अभी इस पेपर को मैं पहली बार देख रहा हूँ, और ये पेपर मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा काम का पेपर है भाई। ठीक है, क्योंकि जो जनरल क्वेश्चंस वो पूछता है, ट्रेंड से हट के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो दिस इज क्रिप्टॉन। Now, displacement reaction of halogens. Aqueous chlorine reacts with aqueous potassium iodide. One of the products formed is iodine. Now, the displacement will take place. Chlorine is a more reactive halogen than iodine. So, chlorine will displace iodide ions from its salt solution. And how do I know chlorine is more reactive? Because down the group in group 7, reactivity of halogens decreases. So, chlorine is above iodine in group 7. So, it means chlorine is more reactive. So, chlorine will displace iodide ion. And what does displacement mean? That more reactive halogen, तो react halogen more reactive होता है, more reactive halogen reduces and less reactive halide ion, ठीक है, oxidizes, that is it loses electrons. So chlorine will gain electron. Basically, chlorine is snatching the electron of iodide ions. So it will itself get reduced to form chloride ions. And iodide ion, after losing electron, it will form iodine. So we can say that chlorine is getting reduced, whereas iodide ion is getting oxidized. You have to make the ionic equation directly, so you just have to balance this equation. We have 2 iodine on the right hand side. So we have to put 2 moles of iodine on the left and 2 mole of chloride on the right. ठीक है, अब आप देखें, अगर आपको किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस की आयनिक इक्वेशन बनानी है ना, तो दैट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। उसमें आपको क्या करना होता है, यू जस्ट हैव टू रिमूव द मेटल आयन दैट इज प्रेजेंट विद द सॉल्ट। लेट मी शो यू। ये आयनिक इक्वेशन बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस की जो आयनिक इक्वेशन है, दे आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमने सारी आयनिक इक्वेशंस कैसे बनती हैं वो देखी हुई हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस, जैसे अगर मैं आपसे कहूं वी हैव पोटेशियम bromide, and if we bubble in chlorine gas into potassium bromide, so we know that chlorine is more reactive halogen than bromine. So chlorine will displace bromide ion from the potassium ion. It will get potassium chloride and bromine. Okay, if you're going to balance this equation, you will have to put 2 with potassium bromide and 2 moles with potassium chloride. अच्छा, अगर मैं इनकी स्टेट सिंबल्स की बात करूं, तो potassium bromide is a soluble salt because all group 1 salts are soluble. Chlorine is a gas at room temperature. We are bubbling in chlorine into this aqueous solution, and we will get potassium chloride, which is again a group 1 salt, has to be aqueous, and bromine, as it is formed, it will dissolve into this aqueous solution to form aqueous bromine. Now, the 2 important concepts that are usually asked in this question, one is make an ionic equation, secondly the observations. ठीक है, ऑब्जर्वेशंस का क्या मतलब है कि इसमें जो है ना, आप यूजुअली ऑब्जर्वेशन कलर लिखते हैं। आपको ब्रोमीन, एक्वस ब्रोमीन का कलर बेटा याद करवाया गया है, दैट इज ऑरेंज, राइट। नाउ पोटेशियम ब्रोमाइड इज अ ग्रुप 1 salt and it is a soluble salt, so the color of the solution must be colorless. Any group 1 compound or any group 2 compound or any group 3 compound, if they are soluble in water, so they has to be colorless. Only transition metal compounds, they can be colored compounds, right? So ये तो colorless होगा। Now क्लोरीन गैस का जो आपको कलर याद किया हुआ है, वो आपने पेल ग्रीन याद किया हुआ है। अब आप ऑब्जर्वेशन में क्या लिखते हैं, यू गाइस राइट पेल ग्रीन टू ऑरेंज। अब ये ऑब्जर्वेशन हो गई है गलत। क्यों भाई, देखें, अगर आपके पास पोटेशियम ब्रोमाइड कलरलेस सॉल्यूशन है, उसमें अगर आप क्लोरीन गैस को बबल इन करवा रहे हैं, तो क्लोरीन गैस जाके डिसॉल्व थोड़ी हो रहा है उसमें। क्लोरीन गैस एज इट हैज कम, एज इट इज कमिंग इन कांटेक्ट विद द पोटेशियम ब्रोमाइड, इट विल इमीडिएटली रिएक्ट विद पोटेशियम ब्रोमाइड। तो वो अपना कलर थोड़ी देगी एक्वा सॉल्यूशन में, वो बाहर होगी ग्रीन कलर की, लेकिन पोटेशियम ब्रोमाइड में जाके उसने अपना कलर थोड़ी देना है, वो तो जाके रिएक्ट हो जाएगी फौरन। तो आपने कलर चेंज जो बताना है वो क्लोरीन गैस से नहीं बनाना, आपने वो पोटेशियम ब्रोमाइड का कलर कलरलेस था, और जब एक्वस ब्रोमीन बना तो उसने वाटर के या एक्वस सॉल्यूशन के कलर को क्या कर दिया, ऑरेंज कर दिया। सो द कलर इन दिस केस वुड बी कलरलेस टू ऑरेंज। ठीक है, नहीं, पोटेशियम ब्रोमाइड में ब्रोमाइड आयंस का कोई कलर नहीं होता, वो एक्वस ब्रोमीन है, ब्रोमीन इज स्टिल स्टेइंग इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। एक्वस ब्रोमीन का कलर बेटा ऑरेंज होता है, ब्रोमाइड आयन का नो कलर। ठीक है,
प्रेसिपिटेट अगर बनता है ब्रोमाइड आयन का तो वो एक अलग बात है। देखो सिल्वर ब्रोमाइड इज नॉट अ सॉल्युबल सॉल्ट, इट इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, उसका कलर क्रीम प्रेसिपिटेट होता है या ऑफ वाइट पीपीटी होता है। सिल्वर आयोडाइड इज येलो पीपीटी, राइट, एंड सिल्वर क्लोराइड इज व्हाइट पीपीटी। अब ये प्रेसिपिटेट है, ये सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन थोड़ी है। अगर मैं क्लोराइड का कोई सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन बनाऊं, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, वाटर में डालते हो क्या कलर चेंज होता है? उसमें क्लोराइड आयन आते हैं? नहीं, इट स्टेज कलरलेस। अब क्लोरीन गैस का कलर पेल ग्रीन है, क्लोराइड आयन थोड़ी ना पेल ग्रीन कलर देता है। क्लोरीन गैस को पानी में डिसॉल्व करोगे तो सोल्यूशन पेल ग्रीन होगा। सोडियम क्लोराइड रोज डालते हो ना, डाल के तो देख सकते हो ना घर में, कॉमन सॉल्ट को, सोडियम क्लोराइड को, कलरलेस ही रहेगा। इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे क्लोराइड या आयोडाइड में से कौन सा आएगा? अगर एक्वस लिखा हुआ है तो बेटा हाइड्रोक्साइड विल गेट ऑक्सीडाइज, अगर कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है तो क्लोराइड और आयोडाइड। अगर आप ये कह रहे हैं कि क्लोराइड और आयोडाइड एक साथ हों और एनोड पे कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, तो उसकी बात अलग है। फिर उसमें फिर हमारे पास आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज होगा। सोडियम कहां से लाऊं बेटा? आपका जो सॉल्ट है घर में, दैट इज सोडियम क्लोराइड ना, वो डाल दो पानी में। अच्छा, मैं इसकी ना आयनिक इक्वेशन बता रहा हूं आपको। देखिए बैलेंसिंग की ट्रिक तो, ये तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है ना। इसकी आयनिक इक्वेशन कैसे बनाओगे? इन ऑर्डर टू मेक द आयनिक इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस, आपके पास एक तरीका है कि आप एक्वस चीजों को आयनाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो एक्वस ब्रोमीन है ना, ये आयनाइज नहीं होगी। जो एक्वस कंपाउंड होते हैं वो आयनाइज होते हैं, मतलब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं और या फिर एसिड्स होते हैं। भाई देखो, हेलोजेंस की जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उनकी आयनिक इक्वेशन अगर आपने बनानी है ना, तो आपने जो पोटेशियम आयन है उसमें बस वो रिमूव कर दो। मतलब जो भी मेटल आयन लगा हुआ है ना वो हटा दो, बन गई आयनिक इक्वेशन। बाकी सारी चीजें एक साथ लिख दो। पोटेशियम ब्रोमाइड में यू आर लेफ्ट विद ब्रोमाइड आयन, तो उसके ऊपर सिंबल साइन लगा देना। क्लोरीन ऐसे ही रहेगा Cl2, राइट हैंड साइड पे पोटेशियम हटा दो, 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन विल स्टे सेम, और ब्रोमीन ऐसे ही रहेगा, बन गई आयनिक इक्वेशन। हाँ, सल्फेट और नाइट्रेट कभी भी नहीं होगा। अगर मोल्टन सल्फेट भी होता है ना, तो हम लोग उसमें असल में होता तो है वो, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आपसे मैं कह दूं मोल्टन कॉपर 2 सल्फेट है, कैथोड पे तो आ गया आपका कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, रिड्यूस होकर कॉपर मेटल बन गया, सल्फेट आयन की ऑक्सीडेशन की इक्वेशन नहीं आएगी। देखो बेटा, आयनिक इक्वेशन मैं आपको उसकी बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस है ना। अब आयनिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं? अब आयनिक इक्वेशन के लिए एक्वस चीजों को आयनाइज करके लिखते हैं, जो आपके कंपाउंड्स होते हैं। लाइक इसमें 2 मोल ऑफ पोटेशियम आयन निकलेगा एंड इट विल गिव 2 मोल ऑफ ब्रोमाइड आयन। क्लोरीन इज अ गैस, so it will stay as is, and potassium chloride would give you 2 mole of potassium ion and 2 mole of chloride ion. But bromine is won't get ionized because it is a diatomic molecule. तो जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, although it is written in the aqueous form, but इसका हम आयन नहीं बनाएंगे, it will stay as is. So the only spectator ions that we have on left and right hand side of the equation is the potassium ion. So we won't write potassium ion by writing the ionic equation. तो हमारे पास क्या रह जाएगी आयनिक इक्वेशन? 2 मोल ऑफ ब्रोमाइड आयन, क्लोरीन, राइट साइड पे 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन एंड ब्रो। तो इनके स्टेट सिंबल इक्वेशन में है, जस्ट कॉपी डाउन दी स्टेट सिंबल्स। दिस इज योर आयनिक इक्वेशन। इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने, अगर आप गौर से देखें, तो सिर्फ जहां जहां मेटल आयन है ना वो हटा दिया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स में नॉन मेटल आयन हटा दो, आयनिक इक्वेशन बन जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस में मेटल आयन हटा दो, आयनिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया? और इसकी ऑब्जर्वेशन होगी कलरलेस टू ऑरेंज। नो, यू कैन नॉट डू दिस फॉर एनी आयनिक इक्वेशन। ठीक है, आयनिक इक्वेशन आपके पास कितनी है भाई? आयनिक इक्वेशन आपके पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स की। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास लेट्स से ये है एल्यूमिनियम सल्फेट है, Al2SO4 3, and let's say if it is reacting with a more reactive metal, take it magnesium, so you will get magnesium sulfate and aluminum metal. Aluminum ion will get oxidized, sorry, it will get reduced because aluminum is a less reactive metal. Magnesium is being more reactive, it will get oxidized. Okay, if you're going to balance this equation, so you can see we have 2 aluminum on the left hand side, we will write 2 aluminum on the right hand side. और सल्फेट आइन, बल्कि इसकी बैलेंसिंग जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेगी, बिकॉज सल्फेट आयन जो है ना टोटल 3 हो गए। तो राइट हैंड साइड पे मुझे मैग्नीशियम सल्फेट के साथ 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, एल्यूमिनियम के साथ 2 लगाना पड़ेगा। नाउ इट इज बैलेंस्ड।
If you have to give the state symbol, aluminum sulfate is a soluble salt because all sulfates are soluble except for calcium sulfate, lead 2 sulfate and barium sulfate. Magnesium sulfate is again a soluble salt, aluminum solid form में. अगर मैं आपको इसकी आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा हूँ, just remove the non metal ion which is your sulfate ion. बाकी सारे मेटल्स एक साथ लिख दो. एल्यूमिनियम 2 है ना यहाँ पे, तो यू विल गेट 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आइन. एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव आइन की फॉर्म में. जस्ट कॉपी डाउन मैग्नीशियम एज इज. राइट हैंड साइड पे जस्ट कॉपी डाउन मैग्नीशियम आइन फ्रॉम मैग्नीशियम सल्फेट. क्या 3 मोल्स, आप 3 लिखेंगे. ऑन द राइट हैंड साइड फिर एल्यूमिनियम है, जस्ट कॉपी इट डाउन. बन गई आयनिक इक्वेशन. ठीक है, ठीक है मूसा एंड आयशा. अच्छा, नाउ कमिंग बैक. अच्छा, ये फैब मार्च 2025 का पेपर है भाई. हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. आईजी का पेपर है एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन. अच्छा, अब यहाँ पे जो हम आयनिक इक्वेशन बना रहे थे ये हमने बना ली. अब हम आगे बढ़ते हैं. कहाँ चले गए हम लोग. एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इज डिफाइंड एज अ redox reaction. The reaction is a redox reaction when both oxidation and reduction is taking place at the same time. But whenever he asks you to describe oxidation or reduction or prove that reduction या oxidation takes place in any reaction, तो आप in terms of number of electrons लिखेंगे. Give your answer in terms of number of electron. पहले ये क्वेश्चन में कहते ही नहीं थे कि write your answer in terms of number of electrons. So what student used to do, they used to write in terms of oxidation number. बड़ी confusion होती थी because writing in terms of oxidation number is also correct. But now what they have started doing is they mention specifically that you have to write in terms of number of electrons. So अब तो आपको लिखना ही है in terms of number of electrons. So whenever anything is getting oxidized, it means it must be losing electrons, and if anything is getting reduced, it must be gaining electrons. So if you see this reaction, here you can see chlorine is forming chloride ion. It means that chlorine molecule must be gaining electron. So you would write chlorine is, Cl2 is gaining electrons. ठीक है. एंड अच्छा, ब्रैकेट में आप ये लिख सकते हैं गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो रिडक्शन. And iodide ion is losing electrons. This is oxidation. As both oxidation and reduction is taking place. So a redox reaction. लूजिंग गेनिंग में कंफ्यूजन कैसे दूर करूं भाई. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. या वर्ड याद रखें ना, ऑयल रिग, where O is for oxidation. Oxidation is loss of electron and increase in oxidation number. Reduction is gain of electrons and decrease in oxidation number. अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हैं, क्लोरीन पहले 0 था फिर -1 हो गया, तो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ना. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन. गिव द कलर एंड द स्टेट ऑफ आयोडीन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. कलर ऑफ आयोडीन इज ग्रे ब्लैक, या ब्लैक लिख दे आप, या शाइनी ब्लैक लिख दे, ऑल आर एक्सेप्टेबल. एंड द स्टेट ऑफ कोर्स ऑफ आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ब्रैकेट में लिख दो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अच्छा भाई, मूविंग ऑन. The next question is question number 4. Carbonyl chloride is manufactured by reacting carbon monoxide with chlorine. This is a reversible reaction and this reaction is exothermic in the forward direction. Whenever they give you enthalpy change with a reversible reaction, that is by default for the forward reaction. The process takes place in a closed system and equilibrium is reached. The condition for this process are 200 degrees Celsius and 200 kilopascal. Explain what is meant by the term closed system. अच्छा, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन. क्लोज सिस्टम वाला आपका 2024 में भी आ गया है. तो क्लोज सिस्टम इज दैट सिस्टम वेयर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्टेज इन द रिएक्शन मिक्सचर एट द सेम टाइम. अ सिस्टम where both reactants and products stay in the reaction mixture.
ठीक है। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में कंडीशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में एक कंडीशन ये लिखी हुई है, अ क्लोज सिस्टम। वहां पे हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज अ क्लोज सिस्टम। अगर आप इफ यू लेट योर प्रोडक्ट टू स्केप फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, तो फिर रिएक्टेंट में कौन कन्वर्ट होगा? दैट्स व्हाट क्लोज सिस्टम मींस, दैट you have to keep your container closed in case if gases are being produced as one of the products, so it shouldn't escape the reaction mixture अगर उसको वापस reactant में convert होना है। ठीक है। Shan say yes, you can write no substance enters or leaves the system. Yes, that is correct. That is also a closed system. State what is meant by the symbol ΔH. ΔH is your enthalpy change. Okay, now I have a feeling this question is exactly repeated. Where have we solved it before? Okay, guys. भाई ये क्वेश्चन जो है ना ओ के किसी पेपर में आया हुआ है। एग्जैक्ट क्वेश्चन एज फार एज आई कैन रिकॉल ये ओ के किसी पेपर में आया हुआ है 2024 की सीरीज। ठीक है, उठा के आईजी के 2025 में डाला। Said how the value of del H shows that the forward reaction is exothermic. So because del H has a sign of negative, that's why it is exothermic reaction. ठीक है। State अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं state how the del H value show that the forward reaction is exothermic. So it has a negative sign. Negative value of enthalpy change. डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ डेल एच फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। अगर फॉरवर्ड जो है वो नेगेटिव -105 है तो फॉरवर्ड जो है वो पॉजिटिव 105 हो जाएगा। कंप्लीट टेबल 4.1 टू शो द इफेक्ट इफ एनी ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, जिसको इन्होंने कहा हुआ है कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है। व्हेन द फॉलोइंग चेंजेस टू द कंडीशंस आर अप्लाइड, यूज एनी वर्ड्स increase, decrease, or no change. The temperature is increased. So if you are going to increase the temperature, the forward reaction is exothermic. तो उसके लिए क्या होता है, जब forward reaction exothermic होता है तो increasing concentration, sorry, increasing temperature shift the position of equilibrium towards endothermic side. ठीक है। अब फॉरवर्ड साइड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड साइड एंडोथर्मिक है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे इक्विलिब्रियम जाएगा तो जो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। Some carbon monoxide is added. Carbon monoxide is at the reactant side. If you are going to increase the concentration of the reactant, the position of equilibrium will shift more towards right hand side. More product will form. तो जो COCl2 की concentration है वो increase हो जाएगी। The pressure is increased. So if you are going to increase the pressure, you have to see the moles of gases that are present on the left and the right hand side of the equation. So reactant में दोनों gases हैं जिनके 2 moles हैं. We have to compare the stoichiometric moles. Right hand side पे we have 1 mole of gas. So if you are going to increase the pressure, the position of equilibrium shifts towards the side where you have fewer moles of gases. तो fewer moles right side पे तो right पे जाएगा तो ये COCl2 increase हो जाएगा। A catalyst does not affect the position of equilibrium, it only affects the rate of a reaction, so there will be no change on the position of equilibrium. Yes, साथ कह सकते हैं आप। The equation for the reaction can be represented as shown. You have the bonding given for the reactants and the product. You have to find the bond energy values. अच्छा जी, कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट साइड पे जितने भी बॉन्ड आपको दिए हुए ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन का ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, दैट इज 1075, और दूसरे रिएक्टेंट में क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, दैट इज 240। तो ये आप क्या करेंगे, सिंपली इनको जस्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड गिवन है उसकी एनर्जी की वैल्यू 1075 और क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड 240 है, एंड यू हैव 1 मोल ऑफ बोथ ऑफ दीज रिएक्टेंट्स ईच। So this is 1075 for CO triple bond and 240 for chlorine chlorine single bond. तो बता दोगे जरा जल्दी से क्या आंसर आ रहा है? अच्छा, कैसे रिएक्ट, उसने बताया वह हमजा, इट वाज स्पेसिफिकली मेंशन इन द क्वेश्चन कि वो रिएक्टेंट की बात कर रहा है या प्रोडक्ट की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना COCl2, तो CaCl2 जो है वो हमारा प्रोडक्ट साइड पे है ना, इसलिए तो आपने खुद से डिड्यूस नहीं करना, आपको बताएगा वो। Calculate the energy released when the bonds in the carbonyl chloride form.
अच्छा जी, कार्बोनाइल क्लोराइड इज योर प्रोडक्ट। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है ना यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे, तो ये एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग अ रिएक्शन। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी एट द प्रोडक्ट साइड, तो कार्बन, हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू नहीं पता। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू नहीं पता, उसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू पता है, दैट इज 340। ठीक है, ये 340 है, ये 340 है, और ये वैल्यू हमें नहीं पता। इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज व्हेन द बॉन्ड्स इन कार्बोनाइल क्लोराइड फॉर्म। अब मुझे इंथैल्पी चेंज पता है पूरे रिएक्शन का। इंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला होता है एनर्जी एब्जॉर्ब एट द रिएक्टेंट साइड, एनर्जी एब्जॉर्ब एट रिएक्टेंट साइड माइनस एनर्जी रिलीज एट प्रोडक्ट साइड। तो जो एब्जॉर्ब हुआ है वो कितना हुआ है रिएक्टेंट साइड पे, 1315। जो टोटल रिलीज हुआ है वो सारे प्रोडक्ट्स के जो बॉन्ड बने उसकी वजह से रिलीज हुआ होगा, तो वो मैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है रिएक्शन इक्वेशन के आगे, तो मैं यहां से निकाल लूंगा टोटल एनर्जी रिलीज। ये आ जाएगा -150 नेगेटिव ऑफ 1315। और एनर्जी रिलीज है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगी, बट एनर्जी के केस में आपको साइन नहीं लगाना होता, लेकिन रिलीज कह रहा है तो आप नेगेटिव साइन लगाएंगे। हाँ भाई, क्या आ रही है? सब अलग अलग कैसे बता सकते हो? Shouldn't it be 105? Oh, yes, it is 105. ठीक है, stupid mistake. It will cost you your mark. आयशा फिर कैलकुलेट करो बेटा, 105 से कैलकुलेट करो। 1420, दिस इज योर एनर्जी रिलीज। ओके, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं भी लगाते तो इट्स ओके, क्योंकि वो एनर्जी की बात कर रहे हैं ना। जब इंथैल्पी चेंज की बात करेगा तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव हर हाल में लगाना है। कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक है, टोटल एनर्जी जो रिलीज हो रही है टू फॉर्म ऑल दी बॉन्ड्स एट द प्रोडक्ट साइड, वो कितनी रिलीज हो रही है? वो हो रही है 1420, आपने मुझे बताई। ठीक है, और उसमें कौन कौन से बॉन्ड्स आ जाएंगे? कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड आ जाएगा जो 340 का है, और ऐसे कितने बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल में? 2 बॉन्ड्स है, तो विल मल्टीप्लाइड बाय 2। और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ जाएगा, दैट इज 1075। सॉरी, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो आपको पता ही नहीं है ना, दैट इज एक्स। ये आपको निकालना। -105 बेटा गिवन था एंथैल्पी चेंज क्वेश्चन में, अमित, इट वाज गिवन। नेगेटिव साइन एनर्जी की बात पूरे ना, एब्जॉर्ब और रिलीज, तो उसको जरूरत नहीं है। अगर आप लगा देंगे तो मसले की बात नहीं है, गलत नहीं है, आप लगा दें, आप कंफ्यूज ना। एब्जॉर्ब है ब्रेक बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए पॉजिटिव, रिलीज है तो नेगेटिव। ठीक है, उसने लिख दिया है ना रिलीज है, तो इट मीन्स कि वो नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे जरूरत नहीं थी। ठीक है भाई, बॉन्ड एनर्जी कितनी आ रही है आपके पास कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की? टोटल एनर्जी रिलीज फॉर ऑल दी बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 × 340, और एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो दिस इज कमिंग आउट एज 740। दिस इज 740। अब बॉन्ड इंथैल्पी लिख रहे हो यहाँ पे आप, या बॉन्ड एनर्जी लिख रहे हो, तो बॉन्ड एनर्जी के साथ हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाते। जब हमें सॉल्व करना होता है ना कि ब्रेक हो रहा है या फॉर्म हो रहा है, तो उस वक्त मैं पॉजिटिव नेगेटिव लगाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे साइन की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट राइट 740 किलो जूल पर मोल। अच्छा, पार्ट डी से इसमें आपसे बॉन्डिंग पूछ रहा है, यू हैव टू मेक अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। तो इसमें आप किस तरह से बनाएंगे? कार्बन मेक्स 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, क्लोरीन ओनली मेक्स 1 कोवलेंट बॉन्ड, तो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही है। इसमें आप मिस्टेक क्या कर रहे हैं? इसमें आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना रहे बाकी आइटम्स के। कार्बन ऑफ कोर्स इज मेकिंग हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन? ऊपर दिया हुआ है ना इसका, कार्बन इज मेकिंग 2 कोवलेंट बॉन्ड विद द ऑक्सीजन, इट मींस 4 शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप कार्बन के डॉट से बना रहे हैं तो ऑक्सीजन के क्रॉस से बना दीजिएगा। ऑक्सीजन के लोन पेयर आपको शो करना है, 2 लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, और क्लोरीन के जो लोन पेयर हैं 3 लोन पेयर आपको शो करना है, क्योंकि क्लोरीन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? बेटा 5 मार्च 2025 का पेपर है, IGCSE का, बहुत अच्छा पेपर है, आप लोग कर लें, क्वेश्चन से मतलब रखें, ये मैं भेज दूंगा। Question number 5 says manganese is the element with the atomic number 25 in the periodic table. Calcium is the element with the atomic number 20 in the periodic table. Complete table 5.1 to show the number of protons, neutrons and electrons in the manganese atom. जल्दी से फौरन आंसर बता दो।
Go to the periodic table, see the atomic number of manganese and atomic number of calcium, because atomic number will always stay same no matter what element is. क्या उसका कोई भी isotope atomic number never changes. Manganese is 25, calcium is 20. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इनके हमेशा सेम रहेंगे. मैंगनीज के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 25. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के पास, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. हाउ डू यू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? Subtract protons from the nucleon number, which is 55. अच्छा, nucleon number I am not seeing from the periodic table because it can be any other isotope of manganese. तो उसने दिया हुआ है 55, तो 55 minus 25 is 30. For calcium, the number of protons is 20. As it has a calcium 2 positive ion, it means it must be losing 2 electrons to form how many इलेक्ट्रॉन्स? 18 इलेक्ट्रॉन्स. और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? 42 minus 20 is 22. ठीक है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आगे बढ़ते हैं. Manganese forms several oxides. The formula of these oxides are shown. Suggest why the manganese is expected to form colored oxides. भाई transition metal है ना, but transition metal they always form colored oxide because manganese is a transition metal. You do not have to give a reason why transition metal form colored compound. You just have to remember the fact that transition metals form colored compounds. Because manganese, this is not magnesium. Manganese is a transition element. State which other property of manganese is shown by the formation of several oxides. Manganese is able to form different oxides where each magnesium atom has a different oxidation number. And the other property of manganese that is represented by these different types of oxide is that manganese can have variable oxidation number because it is a transition metal. So the property that is being depicted by these different types of oxide is variable oxidation number. Say the formula of manganese 2 oxide. So how do you make the formula of ionic compound? Manganese is a metal, oxygen is a non-metal. Manganese 2 means magnesium has a charge of 2 positive. Oxide has a charge of 2 negative. You have to simplify these two charges. These can be further simplified. Just divided by 2, you will get M plus 1 with manganese and minus 1 with oxygen. Just cross these charges. 1 with the oxide will come under the subscript of manganese and vice versa. ठीक है भाई. Mn3O4 is found in an ore of manganese. Manganese metal can be extracted from Mn3O4 using aluminium as the reducing agent. So aluminium must be more reactive than manganese because a more reactive metal can reduce a less reactive metal ion. Right? Aluminium will itself get oxidized, but it will reduce the manganese ion from its compound. Define the term reducing agent. A substance that oxidizes itself but reduces the others. That's it. Complete the symbol equation for by inserting the formula of the missing product and balancing the equation. ठीक है. I'm missing your messages क्योंकि बहुत आसान सा काम है बेटा, and mostly questions that I'm getting in the chat are actually relevant. अभी पेपर कहाँ से मिलेगा? ये पेपर कौन सा है? और कोई रिवर्सिबल का क्वेश्चन पूछ रहा है. इनका पेपर इतना आसान क्यों है? ठीक है, तो ये वाले मैसेजेस के चक्कर में ना वो मिस हो रहे हैं. पार्ट ए न्यूट्रॉन वाला समझा दे. न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भाई न्यूक्लियन नंबर गिवन है, दिस इज योर मास नंबर. राइट? आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर. ठीक है, 55 प्रोटॉन जो है वो 25 है. हाउ डू यू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? 55 माइनस 25 कितना होता है? मेरी मैथ्स पे मत जाना, देख लो 30 होता है ना. ये देखो फिर शुरू हो गया. ओ लेवल इज इजी और आईजीसीएस इज इजी. भाई तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्वेश्चन मिल रहा है, लूटो. मेरा कैल्शियम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऐसे ही आएंगे ना. इसका एटॉमिक नंबर 20 देखा आपने. ये कैल्शियम का कोई और आइसोटोप है जिसका मास नंबर 42 है. तो 42 माइनस 20 कितना होता है? 22. 22 ही होता है ना, या कुछ और होता है? इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? टू पॉजिटिव चार्ज है. जितने प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के पास, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब टू पॉजिटिव चार्ज है मतलब इट मस्ट हैव लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितना रह जाएगा? 18.
सही है अपना। कौन पूछ रहा था ये? आयशा, एंड में करते हैं वो वाली, जो आपके आंसर रह जाएंगे ना वो एंड में कर लेते हैं। ब्रेक ब्रेक का क्या मतलब, खत्म हो रहा है बस पेपर? गैस पेपर। मैंने कौन सा इनको कहा मूवीज ये है, ये ही है गैस पेपर। गैस पेपर हो जाएगा वो। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? अच्छा, पेपर खत्म कर लें फिर बात करते हैं, कल वैसे हम पूरा दिन बातें ही करेंगे, टेंशन नहीं लो। Construct the symbol equation by inserting the formula of the missing product and balancing the equation. So, which product is missing? When manganese ions are getting reduced, you will get magnesium in elemental form. और एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ आके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। मैग्नीज थ्री, नो नो नो, ये मुश्किल बैलेंसिंग है भाई इसकी। एक मार्क की तो इक्वेशन के प्रोडक्ट लिख दिया आपने, बैलेंसिंग तो आपको, हाँ, ओहो, तू मुझसे बैलेंस होगी या नहीं होगी तू बता। कहीं बैलेंसिंग फंसती भी है। ये सिंपल बैलेंसिंग नहीं है। ठीक है, ये छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पे। फंस जाओ तो टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पे। अच्छा जी, थ्री देखो, जब ऑक्सीजन मैंने देखा ना, या फोर है या थ्री है, तो फोर और थ्री को बैलेंस करने का मुझे एक ही तरीका समझ आता है। ठीक है, अगर आप थ्री और फोर को, मतलब एक ऑड और एक इवन नंबर को आप बैलेंस करने जाते हैं, तो आप इसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको थ्री से करेंगे तो मैग्नीज नाइन हो जाएगा, तो राइट साइड पे आप मैग्नीज नाइन लेंगे। और एल्यूमिनियम फोर टू जार एट हो गया राइट पे, तो यहाँ पे आप एट लेंगे। तो मैंने ये थ्री और फोर से पकड़ ली बैलेंसिंग इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आ जाएगी, डोंट वरी। Manganese oxide, this is manganese 4 oxide basically, reacts with hydrochloric acid as shown. Calculate the volume of chlorine gas formed at RTP when excess of manganese oxide react with 50 centimeter cube or 0.2 mole per dm cube of HCl. Calculate the number of moles of HCl. मैं आपको नहीं कहता कि जब भी आपके पास कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन हो बेटा आप मोल्स निकाल लें, इन्होंने तो खुद ही कह दिया मोल्स निकालने HCl के। तो यू हैव द कंसेंट्रेशन of HCl, you have the moles of HCl. So the concentration is 0.2 mole per dm cube, volume is 50 cm cube, just divided by 1000 you will get the moles. मुझे जल्दी जल्दी से जरा आंसर्स बताओगे या मैं खुद करूं सॉल्व? This is coming out as 0.01 mole. Are you sure? 0.01 mole. Reduce the number of moles of chlorine formed. Now you can see the equation. 4 moles of HCl is producing 1 mole of chlorine. So the ratio between HCl and chlorine as per the equation is 4 mole of chlorine will always produce 1 mole of chlorine from this equation. So 0.01 mole of HCl would produce X moles of chlorine. So if we just cross multiply it, the value of X would be 0.01 divided by 4. This is 0.0225 mole. Okay, moving on. Calculate the volume of chlorine formed. Now you have the moles of chlorine gas. In order to convert the moles of chlorine gas into its volume, and the volume has to be given in centimeter cube. So the formula is V over 24,000 cm cube. 0.0225 multiplied by 24,000. क्या फिक्स करते हैं? 0.0025 है, अरे क्या क्या 0.225, ये अच्छा एक ही बच्चे ने इतने सारे, अरे भाई एक बार लिखो ना चैट। दिस इज 0.0025। ठीक है, एंड द वॉल्यूम इज सेंटीमीटर क्यूब में कितनी आएगी? 0.0025 मोल इज 60 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओ में ये क्वेश्चन जो है वो एक साथ आ जाता है पूरा 3 मार्क्स के लिए, इन्होंने हेडिंग्स बना दी है उसकी। डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का टेस्ट क्या है भाई? डैम लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर कैन बी ऑफ एनी कलर, क्लोरीन के केस में चाहे वो ब्लू हो चाहे वो रेड हो, डैम लिटमस पेपर। और ऑब्जर्वेशन क्या होती है? डैम लिटमस पेपर ब्लीचेस, डैम पेपर ब्लीचेस दी डैम। डैम की जगह वेट भी लिख सकते हैं। हाँ, इट फेड्स भी लिख सकते हो, और कलरलेस हो जाता है। कलरलेस तो नहीं लिखो, खैर फेड लिख दो। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ कोलिजन थ्योरी आ गया। व्हाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर डिक्रीजेस द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है भाई,
कोलिजन थ्योरी क्या होती है? व्हेन पार्टिकल्स व्हिच हैव एनर्जीज इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, व्हेन दे कोलाइड, दे अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन एंड ओनली देन द प्रोडक्ट विल फॉर्म। ठीक है भाई। तो आपके पास, मैं ये पूरा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पीछे भी आ चुके हैं। तो इफ यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर decreases the kinetic energy of particles. When kinetic energy of particle decreases, so we have fewer molecules with energies equal or greater than activation energy. ठीक है। So frequency of effective collisions decreases, right? Hence speed of reaction decreases. Okay, moving on. Finally, organic. The structure formula of two compounds A and B are shown. A is alkene, B is alkene. If you are going to name B, B is butene. देखो, naming जो है ना, from this year's point of view is very important. I have been telling you again and again and again. Butanene, butene, propane 1-ol, propane 2-ol, इनके नाम बेटा आप लोग याद रखें। ठीक है। और ए जो है वो प्रोपीन है। प्रोपीन में प्रोपनीन प्रोपटूइन नहीं हो सकता, बिकॉज थ्री कार्बन में डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट और सेकंड के बीच में ही आएगा। A and B are members of the same homologous series. Give two reasons why the structure formula of A and B show they are the members of the same homologous series, because they have the same functional group, which is carbon-carbon double bond. Right? And the option 2 says, you have to give two reasons. Same homologous series में भाई they have the same functional group. Every member differ by CH2. मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, अब why the structure formula of A and B show they are the members of the same homologous series? They follow the same what? बोलो ना. They follow the same general formula, right? Or you can also write members differ by CH2. आप इसमें ये नहीं लिख सकते दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख के आप कैसे कह रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है? तो आप ये बात ना लिखिएगा। राइट एनी ऑफ दीज 3 पॉइंट्स। वो तो बात हो गई ना, दे हैव, हाँ, सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब दे बोथ हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज एक्सेप्टेबल टू। Explain why A and B are both hydrocarbons, because they both contain carbon and hydrogen elements only. बेटा only का वर्ड जरूर लिखना है। Both contains hydrocarbon is those compounds which have carbon and hydrogen elements only. Alcohol hydrocarbon नहीं कहते उसको। Both contains carbon and hydrogen elements only. Write the symbol equation for the complete combustion of A. So A is your propene C3H6. And how do you make the equation, complete combustion equation? You know how to balance it. We have 3 carbons, so it will give you 3 moles of carbon dioxide. जितने हाइड्रोजन होते हैं उसको हाफ करके moles of water बना दो. 6 divided by 2 is 3. And for moles of oxygen, you have the formula, right? X plus Y over 4, where X is your number of carbon atoms in the alkene molecule and Y is your number of hydrogen atoms. So this is 3 plus 6 over 4. कितना बन जाएगा ये? 2 2s are 4, 2 3s are 6. This is 1.5, 3, 4.5. Either you can write it in the decimal form और आप fraction भी लिख सकते हैं 9 over 2. अब आप बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि डेसिमल अलाउ नहीं होता। अलाउ है भाई, अलाउ है, अलाउ है। Deduce the empirical formula of A. भाई you have the molecular formula. Molecular formula से empirical formula निकालना क्या बड़ी बात है? Just take the simplest ratio of the atoms in a molecule, 3 और 6 को अगर मैं simplest ratio लेने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? 3 और 6 को मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से, कॉमन नंबर से। तो ये क्या बन जाएगा? CH2. Name the compound B. Compound B is butene. ठीक है, ऊपर ही डिस्कस हो गया था भाई, ब्यूटुइन है क्योंकि देखो डबल बॉन्ड इज इन बिटवीन दी फर्स्ट एंड दी सेकंड एंड दी थर्ड कार्बन एटम, राइट। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज, ड्रॉ द डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ बी।
अब जो बी का आइसोमर होगा, बी इज ब्यूट टू इन ना, तो आप ब्यूट वन इन बना दे, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे अगर आप रखेंगे तो दिस इज योर ब्यूट वन। आप चाहें तो ब्रांचिंग भी कर सकते हैं इसमें, मतलब CH3 को ब्रांच में भी लगा सकते हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द आइसोमर। नाफे कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई बाय टू करने की, वो एक्सेप्टेबल है, एक पता नहीं कोई मिसकंसेप्शन है आप लोगों का, जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। नेक्स्ट इज compound B reacts with aqueous bromine at room temperature to form product C. The equation is shown. Addition reaction है, bromine decolorize हो जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन में से एक एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक एक ब्रोमीन लग जाएगा। स्टेट वाई दिस इज एन एडिशन रिएक्शन। जब किसी भी रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बनता है तो डेट रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में दो बनते हैं, ठीक है। ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। डिस्क्राइब द कलर चेंज। ब्रोमीन का कलर चेंज जो है वो आपका ऑरेंज डीकलराइज हो जाती है ना, तो जस्ट यू कैन राइट ऑरेंज टू कलरलेस। ठीक है, अगर कोई ब्राउन टू कलरलेस लिख रहा है तो देखिए ब्रोमीन के बारे में एक्वस ब्रोमीन कहा हुआ है, एक्वस ब्रोमीन इज नॉट ब्राउन, एक्वस ब्रोमीन इज ऑरेंज इन कलर। यस, ब्रोमीन लिक्विड इज ऑरेंज ब्राउन इन कलर, तो अगर ब्रोमीन सिर्फ ब्रोमीन कहता तो you could have written brown to colorless, but if it is mentioned aqueous bromine then always write orange to colorless. Name the product C. Okay. Now our naming will come in handy. If you guys can recall, naming हमने थोड़ा सा ऊपर जाके क्यों पढ़ा था? आज से पहले नेमिंग का कम इस तरह का क्वेश्चन नेमिंग का इस तरह का नहीं आया हुआ भाई, ना ओ में ना आई जी। अगर आपको याद होगा तो नेमिंग तो मैं कुछ बहुत ही एक्सटेंसिव इस बार ले गया था, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमने रूल्स भी लिख लिए थे। वे हेडा इंस्टिंक्ट के नेमिंग में वो जाएगा, कुछ ना कुछ लाएगा। अब इसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएं। 1 2 3 4 लेट्स सी कि आपने जो क्लास में नेमिंग याद रखी, क्योंकि मैं पढ़ाते वक्त बार बार कहता था कि इतनी एक्सटेंसिव नहीं होगी नेमिंग, ये बहुत एक्सटेंसिव वाला कंपाउंड नहीं है अभी भी नेमिंग, बट रूल्स याद है नेमिंग के? क्या रूल्स पढ़े थे हमने? आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन, फर्स्ट रूल। हमने तो दो ही रूल पढ़े नेमिंग, आयोपैक नेमिंग के बहुत सारे रूल्स होते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्टेम, ठीक है, ब्यूट। और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, दैट इज ब्यूटेन। ठीक है, अभी भी सब साफ नाम सही नहीं बता रहे हैं। Identify the longest hydrocarbon chain. Number the longest hydrocarbon chain in a way that the branches should get the smaller value possible. ठीक है भाई, नंबरिंग करूं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इट डजेंट मैटर। दोनों केसेस में दो, एक ब्रोमीन सेकंड पे आएगा, एक ब्रोमीन थर्ड पे आएगा। नाउ वन ऑफ द ब्रोमीन इज ऑन द सेकंड कार्बन, द अदर ब्रोमीन इज ऑन द थर्ड कार्बन। ठीक है बेटा, 3 4 क्यों कह रहे हो? एक सेकंड पे एक थर्ड पे, तो दिस इज 2 3 डैश ब्यूटेन है। दो ब्रोमीन है ना, तो यू हैव टू राइट डाई ब्रोमो ब्यूटेन, राइट? दिस इज 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, लास्ट पेज है, टेंशन नहीं लो, ये जरूरी है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि आपने कहां से रिवाइज करनी है ये चीज ना। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कौन से सारा सब पढ़ने की इतनी डिटेल में जितना हमने पढ़ा था उतनी अभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट कुछ छोटे से रूल्स नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेक श्योर के वो आप याद रखें। देखिए भाई, ये वाले जो रूल्स है ना नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है, पोर्टल पे बेटा अली, ड्राइव पे या पोर्टल पे आप जो भी यूज कर रहे हो, ये एक्सटेंसिव जाने का मकसद ही यही था कि हिंट है कि भाई नेमिंग में जाएगा। तो आपके पास ब्रांच में अगर मिथाइल SCH थी, देखो ये वाली भी नेमिंग अभी तक नहीं आई है, ये वाली नेमिंग आ गई अभी पहली बार IG में, अब ये वाली आ सकती। ठीक है, मिथाइल प्रोपेन, कौन सा मिथाइल प्रोपेन?
सेकंड पे 2 मिथाइल प्रोपेन। और अगर दो लगे हुए हैं, ठीक है, एक से ज्यादा दो लगा दिए तो डाइव हो जाएगा। ठीक है, हमने एक ये वाला 2,3 अरे हमने यही बनाया था इत्तेफाक से, 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। हाँ, ठीक है। तो भाई नेमिंग जरा अपने नोट से रिवाइज कर लेना। मुझे नेमिंग का क्वेश्चन ना इस तरह का पहली बार देखा है, इससे पहले नेमिंग का क्वेश्चन हमने नहीं देखा हुआ होता। ओ में नहीं देखा ना, आईजी में देखा। दिस 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, राइट। नेम दी प्रोडक्ट्स। अच्छा, अभी कुछ बच्चे कहेंगे कि अगर हम सिर्फ डायब्रोमोब्यूटेन लिख दें तो वो सही है। देखो, इसकी एमएस तो नहीं है हमारे पास, लेकिन क्या इसकी एमएस एक्सेप्ट कर सकती है, क्या पता कर रही हो। ठीक है, लेकिन राइट वे नहीं है। एमएस निकालो, ढूंढो, मिलती है तो, मुझे तो नहीं मिली थी, मुझे किसी ने भेजी नहीं, मुझे मूसा ने भेजी थी। तो पेपर भेजा था तो पेपर तो हमने कर लिया। Next question says, under certain conditions, 1 mole of B reacts with oxygen to form 2 moles of carboxylic acid. अच्छा, 1 mole of B reacts with oxygen to form 2 mole of carboxylic acid. B is your alkene. Oh God, they are forming carboxylic acid with alkene under certain conditions. Okay. Carboxylic acid D has 2 carbon atoms. Draw the discrete formula of carboxylic acid D. So can you make a carboxylic acid with 2 carbon atoms? It should be ethanoic acid. 2 carbon atom वाला जो carboxylic acid होगा, one of the carbon must have a carboxylic group and the other carbon must have hydrogens attached to it. But they are asking you to make a discrete formula. Make sure कि आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड शो करें. This is for ethanoic acid. And name is ethanoic acid. अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट तो ऐसे किया था, पता नहीं क्या कर देगा. पूछा क्या उसने? Write a simple equation for this reaction. अच्छा, वो ये रिएक्शन जो है ना, अब दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, मतलब पहले से आपको याद नहीं होना चाहिए ये रिएक्शन क्या था, बट इसमें वो कह रहा है कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए ना अंडर सर्टेन कंडीशन, 1 मोल ऑफ बी, दिस इज 1 मोल ऑफ बी, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो द रिएक्ट अदर रिएक्टेंट इज ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 moles ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डी. कार्बोक्सिलिक एसिड डी इज इथेनोइक एसिड विच इज CH3COOH. 2 moles बन रहे हैं इसके, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा. बस ये लिखना था आपको, पूरी करनी थी इक्वेशन. ठीक हो गया. एमएस है इसकी, आ गई. अरे नाइस. डाउनलोड कर. चलो, वी हैव द एमएस ऑफ इट एज वेल. मुझे ब्रोमो ब्यूटेन वाला है, इसमें देखें क्या है आंसर. 2,3 डायब्रोमो ब्यूटेन दिया हुआ है बेटा, मतलब जो हमने ऑर्गेनिक में नेमिंग पढ़ी है, आपको वही नेमिंग के साथ चलना है आगे. ठीक है. बट दिस एमएस, दिस डज नॉट लुक्स लाइक कि ये कैम्ब्रिज की एमएस है मेरे ख्याल से. हाँ, अब आई डोंट फील कि ये कैम्ब्रिज वाली पब्लिश्ड एमएस है, बट सारी चीजें, बट इतनी देखो, कॉन्सेप्ट तो केमिस्ट्री तो सबको पता है ना, अब हमें इतना आइडिया है कि क्या चीज क्या होती है, बट 2,3 डायब्रोमो ब्यूटेन ही देना चाहिए इसका एमएस में आंसर अगर तो दे. ठीक है, क्योंकि नेमिंग का जो इसने सिलेबस में इस बार लाइन लिखी थी ना 2022 ऑनवर्ड्स, तो हमें पता है कि नेमिंग किस एक्सटेंट तक जा सकती है, इस एक्सटेंट तक जा सकती है. ये किसी ने कंपाइल की हुई है एमएस, बट अगेन हमारे पास पेपर पूरा सॉल्व हो गया है. और नेमिंग अगर आपको अभी डाउटफुल है तो आप नेमिंग ऑर्गेनिक के नोट से और रिकॉर्डेड लेक्चर में आप जाएंगे तो नेमिंग पे एक बहुत बड़ा सेशन हुआ है हमारा, वो इंपॉर्टेंट है. कोई रीजन है तो तभी मैं इतनी एक्सटेंशन में लेके गया हूँ ना नेमिंग को. ठीक है भाई, थैंक यू सो मच.